क्योंकि मेरे को एक्सप्लोर किया था क्वेश्चन वी हैव टू फिनिश ना। यशवंत भाई आपने हमको पूरा बजट करके दे दिया है ना? जी सर, करके तो दे दिया है, लेकिन अब पता नहीं उसमें चलो से कितना बहुत अच्छी सही बात। है। अरे सही गलत को चिंता छोड़ो मियाँ, वो हम करा देंगे आपका। नहीं, मैं आपको कॉस्टिंग का भी, मेरे पास जितने असाइनमेंट है मैं आपको सारे करके दे हाँ दूंगा हाँ। 1-2 दिन तक। मैंने वो चलो शुरू गुड कर हो दिया गया। चैप्टर। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। समझे? हम लोग कहाँ पे थे? कॉस्टिंग पे थे ना, हम लोग कॉस्टिंग का चल रहा था। कॉस्टिंग असाइनमेंट 9। नहीं 9 तो आप जब तक करोगे नहीं तब तक मैं छूंगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने फिनिश किया था, साइट 7 में कराता हूँ। 9 जब तक आप लोग फिनिश नहीं करोगे आई विल नॉट डू। अजय भाई आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ना? नो वी हैव नॉट डिस्कस दिस असाइनमेंट। डिड वी डिस्कस दिस असाइनमेंट रोशन भाई? नो नो। नो ना। चले फटाक से। अच्छा मैंने चीजें आपको करनी है। मैं आपको, आप लोग एक बार करो फिर मैं आपको बताता हूँ। मेरे को 1 मिनट आने दो। जस्ट ओके, आपने पहला दूसरा करना है, 2 क्वेश्चन आपने करना है। थोड़ा ऊपर कीजिए स्क्रीन। ओके। तू भी। मेरा वॉइस जा रहा है ना भाई? हाँ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4।
हाथ पे पकड़ के 5 6 7 5
बाबू पानी दे दो यार. It is little different. 9 you can do it. पानी अच्छा थैंक यू. 9 9 9 10. I think 7 we have done. Roshan bhai, are we not repeating the 7 number assignment? I think so. See, that's what. Okay, no problem. 7 I'm not going to, because I have very strong doubt we are repeating the same. Yeah. So it's better to go for 8. See, I'm asking and you said no, we will do it from 7. Now things come. Assignment number 8. Just read, I will do it. We'll go little fast. Okay, bye. Prescio Incorporation recently installed the JIT production and purchasing system. In Prescio, experience is similar to that of the other. Prescio will likely to what? So first of all, I just want to tell you there is a two type of production system works together. Okay, the first is called the MRP system, Material Requirement Planning. If you remember, we have discussed in our theory chapter when we are doing, we have said that MRP and JIT. MRP and MRP and JIT. तो MRP जो होता है that is demand push approach होता है, and JIT होता है वो demand pull approach होता है. This is the difference. In JIT, you need less resources, less stock, but here you need full operating things. यहाँ you have to more stock. And there are so many other things is also there. When we were discussing, we have discussed everything.
We have everything discussed while we were discussing about these things. So now my question was very similar, very simple. When they say that कि when I was saying that, so what he will do? He will be receiving reduce the number of supplier with which it's do the business. First he is saying that I should reduce the number of supplier. What he is saying. The second he is saying that the second is increase the size of individual order of raw material. That what he is not going to do, because when he do these productions he will not increase the size of raw material. Then he is saying that increase the value of investment in the finished goods. For sure he is not going to do that, because that's why he has chosen the GIT system. GIT system is also known as lean production system. Okay, so this is where you don't have to have this bulky approach. Then be less reliant on sales order as a trigger mechanism for production run. No. Okay, so it means that the A is the right answer, because he will have a less supplier, but he should have a reliable supplier, so that he cannot have a OOS situation, out of stock situations, and the things will be supplied as and when required. Then he say that according to the theory of constraint stand for TOC, all the following activities help to relieve the problem of bottleneck process, except the first of all I want to tell you, theory of constraint says that in a production process you will try to identify the bottleneck, and without doing any additional investment you will exploit this bottleneck to increase the production. So the theory of constant is very easy. It will just ask you to read to understand the process. ठीक है, आपको पूरा का पूरा बिजनेस प्रोसेस को वो बोलेगा कि चेक करो, प्रोडक्शन को समझो, एंड देन आफ्टर वेयर एवर यू आर गेटिंग द डिफिकल्टीज, तो आपको वो बोलता है कि नाउ यू शुड एडजस्ट द प्रायर आइटम सो दैट दिस वोंट बी अ बोटलनेक एनी मोर। फिर ये आगे से बोटलनेक की तरह काम नहीं करेगा। तो ये बोटलनेक की थ्योरी बताती है, थ्योरी ऑफ कांस्टेंट बताती है। तो ये बोलता है कि ये सारे काम करेगा विथ सम एक्सेप्शन। इसमें एक एक्सेप्शन होगा। तो पहले पढ़ते हैं कि काम क्या क्या हो रहा है। ठीक है, पहला काम ये हो रहा है कि एक्सेप्शन हमको बताना है। तो बोल रहा है कि एलिमिनेटिंग द आइडल टाइम एट बोटल, तो दिस इज द थिंग्स विच इज गोइंग टू हेल्प, यानी इससे हमको फायदा होगा, क्योंकि जो हमारे पास बोटल नेक होता था वहां पे चीजों को वेट करना पड़ता था, वो अगर हम थ्योरी ऑफ कांस्टेंट अप्लाई करेंगे तो नाउ दैट प्रॉब्लम विल बी eliminated, reducing the startup time at the bottleneck operation। जब हम पूरे प्रोसेस को रिव्यू करेंगे when we apply the theory of constant, तो ये हमारे टाइम को कम करता है। फिर बोलता है कि shifting the product that do not have made to the bottleneck mechanism। उसके बाद जो प्रोडक्ट है, shifting product that do not have to made on bottleneck machine to non bottleneck। अगर कुछ ऐसा प्रोडक्शन है जिसको आप दूसरे यूनिट्स पे ले जाके प्रोसेस कर सकते हैं, एक्चुअल में वो नॉन बोतल वाले यूनिट से भी हो सकता है, आप उसको यहाँ से निकाल के दूसरे यूनिट पे लेके चले जा सकते हैं। इससे आपको कोई एडिशनल या एक्सपेंसिव खर्चा करना नहीं पड़ेगा, एंड योर प्रोडक्शन प्रोसेस विल बी स्मूथ। लेकिन एक चीज है कि ये बोल रहा है कि थ्योरी ऑफ कांस्टेंट आपकी बोटल नेक के ही स्टडीज है, तो नॉन बोटल नेक मशीन पे ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। तो दिस इज द ओनली एक्सेप्शन। When it comes to the
when demand for the product or the product exceed the capacity, which of the first step to the manager should take? अब बोल रहा है कि आपका क्या बोल रहा है कि जब आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी से अगर जब आपकी डिमांड एक्सीड कर जाएगी तो आप उसको कैसे डील करेंगे, हाउ यू विल डील। ठीक है, तो आपसे ये बोल रहा है कि एज अ मैनेजर आपका स्टेप्स क्या होगा। तो ये बोल रहा है कि अगर ये सिचुएशन हुआ तो आप बोल रहे हैं कि which of the following is the first step that manager should do। पहला बोल रहा है कि मैंने spend money to eliminate the bottleneck। जो थ्योरी ऑफ कांस्टेंट है वो कभी भी मनी एक्सपेंस करने के ऊपर बिलीव नहीं करता। ठीक है, तो वो वाला पॉइंट पे तो वो नहीं जाएगा। सेकेंड नंबर पॉइंट बोलता है कि फोकस देयर एफर्ट ऑन कांस्टेंट आइडेंटिफिकेशन। हाँ, लेकिन जो थ्योरी ऑफ कांस्टेंट है ये उसको बोलता है कि यू शुड फोकस, यू should study the you should study the bottleneck points and then you have to exploit, okay, by doing the adjustment in the productions, और वो भी bottleneck से पहले वाले operations पे। फिर बोला है change the throughput, ये भी गलत है। apply the ABC costing to solve the problem, this is also not applicable। So being a managers, you should start to identify the constant and then applying the throughput contributions policies, you will exploit the bottleneck things। So now it comes, अब इस situations में हमारा कंपनी बोल रहा है a company desire to prepare the two set of the financial statement, the conventional financial statement, and that is prepared along with the set that is totally consistent with the value chain analysis, how should customer value cost should be treated in two of the statement। पहला एक कॉन्वेंशनल अकाउंटिंग मेथड्स है, दूसरा वैल्यू चेन एनालिसिस है। तो इसमें बता रहा है कि आपका जो कस्टमर से रिलेटेड कॉस्ट है, कस्टमर सर्विस कॉस्ट है, उसको आप कहाँ पे क्लासिफाई करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो कन्वेंशनल होता है ना, जो कन्वेंशनल होता है उसमें जो सेल्स और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वट एवर बी द काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, उसको आप हमेशा नॉन इन्वेंटरेबल्स मानते हो। लेकिन व्हेन यू डू द वैल्यू चेन एनालिसिस, the expenses which you do for the customer service, actually you are identifying with the product, so you have to cost it, you have to club it with the cost। तो आपको उसको कॉस्ट के साथ क्लब करना पड़ेगा। अब नाउ द क्वेश्चन कम कि आपको बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ फंक्शन इज अ प्रॉपर वैल्यू चेन ऑर्डर। अब ये इसका एग्जांपल्स को मैं दिखाऊंगा तो आई कैन आंसर, बट फॉर द पर्पस ऑफ टेलिंग यू आई कैन से दैट कि ये जो ऑप्शन ए है ना, रिसर्च, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, यू कैन आंसर दिस, बट आई विल गो टू द कॉस्टिंग explanation part, just give me 1 minute। अच्छा, ये क्या नाम है, आजम भाई, यस मेरा आजम भाई, जी जी यस अरे भाई। थ्योरी ऑफ कांस्टेंट आपको याद है क्या? है मेराज भाई, लेकिन अभी माइंड में आ रहा नहीं, कुछ पढ़ा था उसके बारे में। Theory of constant। माइंड में है, याद नहीं है, मतलब नहीं समझ आया भाई। नहीं मतलब उसके बारे में पता है लेकिन अभी आ रहा नहीं। ये तो स्कूल वाला बात हो गया सर, दिमाग पे है बस, मुंह पे नहीं आ रहा। जी हाँ बिल्कुल। अरे यार, और यशवंत भाई आपको याद आ रहा है क्या? ये आपका भी सेम है। थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स नहीं सर, नहीं याद आ रहा। आप भी बोल दीजिए भाई, ये स्कूल वाली बात है यार, सर क्या बोल नहीं, मेरे को तो बिल्कुल आ याद रहा नहीं है, बोल नहीं पा रहा। चलो कोई नहीं। आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो पहले
क्वेश्चन रीड दिस, नहीं एक मिनट, हाँ इससे अच्छा नीचे में भी है। नहीं देखिए ये वाला पढ़ो, ये वाला। ये दो रोशन भाई, Yes, sir. मैं अभी पहला क्वेश्चन व्हेन आई वाज डूइंग द क्वेश्चन नंबर 1, तो हमको एक क्वेश्चन आया ना कि जेआईटी से हम क्या फायदा होगा, तो आई Yeah, एम गिविंग यू एमआरपी, जो ट्रेडिशनल अप्रोच और जो मॉडर्न अप्रोच है, दोनों के बीच का थोड़ा सा आपका आवाज का मसला है, बट प्लीज ट्राई रीडिंग हाँ भाई, हो इट, गया। एटलीस्ट एक बार रीड करें, एटलीस्ट एक बार रीड करें, कुछ समझ आएगा। हाँ कोई एक आदमी तो ऑनर करो भाई पढ़ के, कुछ चीजें ऐसी लग रही हो जो नहीं समझ आ रही हो। सर एक बार एमआरपी समझा दो। अच्छा, एमआरपी होता क्या है ना करण, पुराना एक ट्रेडिशनल जो सिस्टम होता है, जहाँ पे एक बार आप बजट बनाते हो, सेल्स फोरकास्ट करते हो, सारा काम करते हो, लाइक आप एक पहले सेल्स फोरकास्ट किया, फोरकास्ट करते हो, फिर आप उसको हिसाब से क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो, तो ये पूरा का पूरा एक बल्कि साइकिल चलता है, जो हमारा आज जो समाज में जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इस टाइप का है, ठीक है, जिसमें क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें यू हैव टू कीप इट, यानी आपको बहुत सारी चीजें रखनी होती है, समझ में आ रही ना, जिसमें आपको एक्स्ट्रा लेबर रखने होते हैं, सम टाइम आपको एक्स्ट्रा मटेरियल रखना पड़ता है, वो सारी चीजें यू हैव टू कीप इट एज अ रेडी आइटम, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, आपके इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लग जाते हैं, तो दूसरा एक अप्रोच डेवलप हुआ, उस अप्रोच का नाम कहलाता है डिमांड पुल अप्रोच, या जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं जीआईटी सिस्टम, जस्ट इन टाइम सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं हम, जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम में क्या होता है कि आपको जब ऑर्डर मिलेगा ना, जब आपको ऑर्डर मिलेगा, तो आप अकॉर्डिंग टू ऑर्डर काम करिएगा, और अपने यहाँ वो माल का प्रोडक्शन करा के आप उसको सप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा मशीनरी पर एक्स्ट्रा स्टॉक रखना पड़ रहा है, तो बहुत सारे लेबर रखने पड़ रहे हैं, तो ये आपको बहुत सारा चीज आपका बचाव होता है, ठीक है। हाँ जी सर, तो हाँ जी। ये एक तो डिफरेंस है दोनों के बीच का। अब सबसे बड़ा बात होती है दोनों के बीच का, अब सबसे एग्जैक्टली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, आप तुरंत आप उसको, फिर उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी बात लिखी हुई है कि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइज इनटू द प्रोडक्शन, पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज इनटू द मैन्युफैक्चरिंग सेल पे कन्वर्ट हो जाता है, और फिर बाद में यहाँ पे मल्टी स्किल्ड वर्कर काम करते हैं, यानी जहाँ पर जो भी बंदा काम करता है ना, सब एक्सपर्ट और मल्टी स्किल्ड होता है। फिर उसके बाद बोलता है कि यहाँ पे आपके सेटअप टाइम बहुत कम हो जाते हैं, उसके बाद बोलता है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम भी कम हो जाती है, यानी आप जो नॉर्मल प्रोसेस में जो 5 दिन में 6 दिन में करते होते हैं, हो सकता है कि अभी सिनेरियो में 3 दिन में करोगे, और फिर यहाँ पे रिलायबल सप्लायर हो जाते हैं और उनकी नंबर्स भी कम जाती है, यानी यू कैन नॉट रिलाई ऑन द 10 सप्लायर ना, तो आप 2 बंदों पे रिलाई करते हो, 3 बंदों पे रिलाई करते हो, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ जीआईटी, ठीक है। फिर मैंने एक चीजें अभी आपका सेकेंड क्वेश्चन कर रहा था, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट द थ्योरी ऑफ कांस्टेंट, याद है ना जी। तो देखिए, थ्योरी ऑफ कांस्टेंट को अगर अच्छे से समझना है,
तो आई विल जस्ट टेल यू वन लाइन हियर, इसको आप एक बार पढ़ लो मेरे साथ। आइडेंटिफाई द सिस्टम कॉन्स्टेंट, सिस्टम के वीकनेस को पहचानो। डिसाइड हाउ टू एक्सप्लॉइट द कॉन्स्टेंट यूजिंग एवरी पार्ट ऑफ द constraining component without committing the एक्सपेंसिव चेंजेस और अपग्रेडेशन, यानी कोई बल्कि खर्चा आपको नहीं करना। एवरीथिंग एल्स एडजस्ट द रेस्ट ऑफ द सिस्टम टू गिव द कॉन्स्टेंट मैक्सिमम थ्रूपुट। आपको जो क्या करना है, यू हैव टू सबऑर्डिनेट, सारी चीजों को आपको ऐसे एडजस्ट करना है सो दैट कि पूरा का पूरा सिस्टम आपका स्मूथली रन करे। और फिर आपका क्या बोलेगा, फिर इवेल्युएट दी कांस्टेंट, यानी एक बार वन पॉइंट ऑफ टाइम में आपने, ऑन द सेकेंड टाइम आल्सो यू विल डू द सेम thing, you will try to identify any other constant point, फिर you have to do it this ठीक है, इटरेशंस बोलते हैं इसको, जो बार बार जो प्रोसेस को किया जाता है उसको इंग्लिश में इटरेशंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे फिर बी वेयर ऑफ द इनर्शिया। रूल ऑफ इनर्शिया होता है, क्या मतलब होता है, वो जो कोई फिजिक्स की कोई रूल है उसके बारे में बोलता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप रूल नंबर 1 पे जाएंगे, फिर चीजों को चेक करेंगे, फिर अपने अगर फिर आपको कांस्टेंट फैक्टर होता है तो फिर आप अपने पीछे की चीजों को एडजस्ट करेंगे ताकि वो अब नो मोर कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, मैं एक्सप्लॉइटिंग द कांस्टेंट चेंज हाउ द ऑर्गेनाइजेशन यूज द कांस्टेंट विदाउट स्पेंडिंग द मोर मनी। दो ही चीजें दिमाग में होनी चाहिए कि आपको समझना है कि आपने कांस्टेंट को खत्म कैसे करना है विदाउट स्पेंडिंग द मोर मनी। दूसरा, आपको इवेल्युएटिंग द कांस्टेंट रिक्वायर स्पेंडिंग मोर मनी टू इंक्रीज द कांस्टेंट रिसोर्सेज कैपेसिटी। जब आप मैनेज करते रहेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो करने के बाद मेरे लिए परचेज करना या वो काम करना ज्यादा बेहतर है या आउटसोर्स करना है। दिस इज द सेकेंड लेवल ऑफ स्टडीज। बट फर्स्ट लेवल में आप जब थ्योरी ऑफ कांस्टेंट करेंगे तो आप यही समझेंगे कि आप अपने बिजनेस की प्रोसेस को स्टडी करना है, उसके अंदर के बोटलनेक को आइडेंटिफाई करना है जहां जहां पे आपको प्रॉब्लम हो रहा था, और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आपको शॉर्ट करना है, उसको किल करना है, उसको खत्म करना है। दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। तीसरा क्वेश्चन आया था हमारे पास व्हेन आई वाज डूइंग, कि आपको बताना था लिख के दिखाओ, 100 से 200 तक लिख के दिखाओ, बंद करो एकदम, लिख के दिखाओ जल्दी। आई थिंक दैट दिस पार्ट इज नॉट देयर। तो ये पहला काम रिसर्च डेवलपमेंट का होता है। दिस इज द प्रॉपर वैल्यू चेन ऑर्डर। अच्छा, आई थिंक दिस इज वी हैव इट।
ये एक टिपिकल वैल्यू चेन के बारे में बता रहा है कैसे काम करता है। प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, फिर उसके बाद एक्विजिशन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वेयर हाउसिंग करते हैं, मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस करते हैं, जो टिपिकल सा काम है। यहाँ पे क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, उसके बाद मार्केटिंग करते हैं और फिर कस्टमर सर्विस पे जाके एंड हो जाता है। तो ये यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। उसके बाद बोल रहा है फॉलोइंग द मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज बताना है। कंसिडरिंग द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज। अब आपको एक एक चीजों को रीड करना है और बताना है इसमें से कौन सी ये है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज है। उसके बाद वो वैल्यू एडेड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वैल्यू एडेड होना चाहिए। वो बिजनेस में आपकी क्या वैल्यू ऐड करती है उसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। तो आपको रीड करनी पड़ेंगी। बोला कंडक्टिंग द फाइनल असेंबली ऑफ वुड एंड फर्नीचर, यानी असेंबली ऑफ वुड एंड फर्नीचर का मतलब अब सब आपने पार्ट बना लिया, उसको मिला के एक फर्नीचर बनाया, तो ये काम आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हो जाएगी। सेकंड बोलना है मूविंग द कंप्लीटेड प्रोडक्शन टू द गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हाउस, तो ये आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज नहीं है। दूसरा पेंटिंग द न्यूली मैन्युफैक्चर्ड ऑटोमोबाइल्स, पेंटिंग दी ये आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि बिना पेंटिंग की ऑटोमोबाइल वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। उसके बाद बोल रहा है सेटअप ऑफ मशीन रिलेटेड टू अ न्यू प्रोडक्शन रन, तो प्रोडक्शन रन के पहले का ये है, तो ये हमारे लिए सेटअप जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज नहीं मानी जाएगी। उस 5 नंबर में बोल रहा है कि रीवर्क ऑफ डिफर्ड, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि रीवर्क जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में आता है। दैट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो 1 and 3 इज द आंसर। 1 and 3 is the answer. 7 मैनेजमेंट के अकाउंटेंट के पर्सपेक्टिव से बताइए कि इसमें से डिसएडवांटेज क्या है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बिजनेस इंजीनियरिंग होता क्या है कि आपके जो अपने प्रोसेस होते हैं उसको आप दोबारा स्टडी करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी इसमें वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है, कौन सी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है, और आपकी जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज होती है उसको आप एलिमिनेट करते हैं। उसको आप क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। तो अब आप आइए, बोल रहा है कि इंटरनल कंट्रोल, तो ये जब आप री इंजीनियरिंग करते हैं तो बहुत सारे टाइम में आपका क्या हो जाता है, इसमें से हमको डिसएडवांटेज बताना है और वो भी सबसे बड़ा वाला। अभी चूंकि आपने नहीं पढ़ा है इसलिए मैं इसको बता देता हूँ कि ये इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म को डिसअसेंबल कर जाता है, यानी उसके प्रोसेस को ये ओवरराइड कर देता है। तो इसमें ये इसका डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक सिस्टम बना के रखा हुआ था, बट चूंकि आप बीपीआर कर रहे हैं तो आपने नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को हटाते हैं या हटाने की कोशिश करते हैं, तो उससे आपके इंटरनल कंट्रोल्स वो हो जाते हैं, हैम्पर होते हैं, उससे प्रॉब्लम बनती है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि आपकी बेंचमार्किंग के बारे में बात हो रहा है। तो बेंचमार्किंग आपको शायद पता होगा, मैं आपको एक लाइन में बता दे रहा हूँ। बेंचमार्किंग ये होता है कि आप अपने इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट परफॉर्मर हो, सबसे अच्छी क्वालिटी की चीज आप प्रोड्यूस करते हो, आप जो हो एग्जांपल्स दिए जाते हो। व्हेन इट कम्स टू द कपड़ा मार्केट गारमेंट, आदमी बोलता है ना रेमंड्स का कपड़ा, ड्रिंक बोलता है तो पेप्सी या फिर अदर थम्स अप या फिर अदर कोको कोला इज अ बेंचमार्क। बाकी और भी बहुत सारे इरिटेड वाटर्स की है, बट वी आर नॉट कंसीडरिंग देम, सो इट इज लाइक अ बेंचमार्क। तो बेंचमार्क जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बेंचमार्क बोला है कि ऑल द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ बेंचमार्क एक्सेप्ट,
बोल रहा है कि द परफॉर्मेंस ऑफ द यूनिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, अपने ही कंपनी का प्रीवियस ईयर्स का परफॉर्मेंस कभी भी बेंचमार्क नहीं होता, बेंचमार्क हमेशा मार्केटिंग का होता है, ठीक है, वो मार्केट्स के होते हैं या फिर इंडस्ट्री के बेंचमार्क होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाली चीज है इसकी अपनी प्रीवियस ईयर वाली चीज, द बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ मैचिंग हो सकता है, द सिमिलर यूनिट ऑफ द वेस्ट सेम इंडस्ट्री के साथ हो सकता है, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉम्पिटिटर के साथ हो सकता है, सिर्फ अपनी प्रीवियस ईयर्स के साथ नहीं हो सकता। हाँ, अपने किसी बेस्ट परफॉर्मेंस प्रीवियस ईयर के साथ हो सकता है, क्योंकि बेंचमार्क हमेशा बेस्ट वाले होते हैं। उसके बाद ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का क्वेश्चन है, इसको हम अभी नहीं बता रहे। अब इसमें से बताना है कि इंस्पेक्शंस कौन सा कॉस्ट बनता है। When manufacturing the cost, when measuring the cost of quality, the cost of inspecting comings of raw material। तो मैं आपको पहले cost of quality एक बार दिखा दूं, फिर I will come to that point। इस चैप्टर इस वाले पोर्शंस को एक बार समझा जाए तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज कॉस्ट फॉर नॉट प्रोड्यूसिंग क्वालिटी। अब हमसे क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल पूछा था वो क्या था, वो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। हमसे पूछा था इंस्पेक्शंस इनकमिंग रॉ मटेरियल, जो इंस्पेक्शंस जो रॉ मटेरियल जो इंस्पेक्शंस के आने के टाइम का कॉस्ट होता है वो कौन सा कॉस्ट होता है। तो हमने जनरली हमारे 4 तरह के कॉस्ट होते हैं, वो होते हैं प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल और एक्सटर्नल फॉल्ट। तो जो इंस्पेक्शन है, आप देखिए अप्रेजल कॉस्ट का सेकेंड लाइन देखिएगा, देन यू विल फाइंड इट, दिस इज द सेकेंड लाइन दैट इज कॉल्ड द, ये जो सेकेंड लाइन है हमारा, ये हमारा अप्रेजल कॉस्ट होता है, इंस्पेक्शन कॉस्ट इज आवर अप्रेजल कॉस्ट। उसके बाद ये लिस्ट अगर आपने एक बार अगर कायदे से याद कर ली, समझ ली, रट ली, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आपने अगर ये कर ली, और एग्जाम में आई एम श्योर 2 क्वेश्चन आते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के, 2 से 3 क्वेश्चन। सो 3 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि ये 12 मार्क्स का पोर्शन है। इफ यू आर मिसिंग इट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट 12 मार्क्स। तो ये एक आपको समझ के करना है, यू हैव टू डू इट। तो देखिए 4 तरह के कॉस्ट होते हैं, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉलियर। 4 तरह के आपके कॉस्ट होते हैं। ये पहला क्या होता है कॉस्ट, वो पहला जो कॉस्ट होता है वो ये होता है कि टू प्रिवेंट द डिफेक्ट फ्रॉम द ऑकरिंग एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम। आप पहले पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपके जो कॉस्ट होने वाले हैं, आप अगर उसको प्रिवेंट कर लेते हो, देन यू आर डूइंग द प्रिवेंशन कॉस्ट। अब इसमें एग्जांपल्स क्या क्या था, क्वालिटी ट्रेनिंग था, उसके बाद आपकी क्वालिटी सर्किल ट्रेनिंग जो टाइप की होती है, उसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट की एंड प्लानिंग के जो कॉस्ट होते हैं वो सब इसमें आते हैं। उसके बाद इक्विपमेंट मेंटेनेंस के कॉस्ट है वो भी इसमें आते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम वो भी सब इसमें आते हैं। तो ये सारे जो आपके कॉस्ट आते हैं ये सब प्रिवेंशन के कॉस्ट है। अप्रेजल कॉस्ट ये होते हैं जो आप आइडेंटिफाई प्रोडक्शन से पहले आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, बिफोर प्रोडक्शन इट्स इंस्पेक्शन इनकर्ड टू आइडेंटिफाई डिफेक्टिव प्रोडक्शंस बिफोर दे आर शिफ्ट टू द कस्टमर, यानी कस्टमर को देने के पहले का कॉस्ट है। तो जब आप टेस्टिंग के या क्वालिटी टेस्टिंग या क्वालिटी ऑडिट या इंटरनल क्वालिटी प्रोग्राम्स, ये सारे रिलेटेड जो कॉस्ट आप इफ यू आर इनकरिंग, तो दैट हैज टू बी क्लासिफाइड एज अ अप्रेजल कॉस्ट। नाउ आई विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। अब हमसे अगला बोल रहा था कि आपको बताना है कि इसमें से प्रिवेंशन कॉस्ट कौन कौन से हैं। प्रिवेंशन कॉस्ट, तो सबसे पहले मैं एक बार फिर लिस्ट आपके लिए पढ़ देता हूँ। प्रिवेंशन कॉस्ट में क्या आता है, क्वालिटी, क्वालिटी सर्कल, सिस्टम डेवलपमेंट, प्लानिंग, आई इंफॉर्मेशन सिस्टम के कॉस्ट, स्टैटिकल प्रोसेस कॉस्ट, कंट्रोल कॉस्ट, ऑडिट एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी सिस्टम।
तो वो सारे कॉस्ट आते हैं। अब हम इसको रिवर्क का कॉस्ट नहीं आएगा, वारंटी नहीं आएगी, प्रोडक्शन लाइन इंस्पेक्शन नहीं आएगा, ठीक है जी। उसके बाद डिजाइन इंजीनियरिंग आएगा, क्योंकि हमारा डिजाइन इंजीनियरिंग का कॉस्ट हमारा उधर में प्रिवेंशन कॉस्ट में आता है, ठीक है। सिस्टम, ये जो है सिस्टम डेवलपमेंट एंड प्लानिंग जो है कॉस्ट में आता है। फिर सप्लायर का इवैल्यूएशन हमारा हमेशा, क्योंकि हम लेने के पहले का कॉस्ट है, हम उससे माल प्रिवेंट हम उसे ले नहीं रहे हैं, बल्कि उसके पहले उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं ताकि हमको दोबारा कहीं महंगा ना पड़ जाए। तो दैट व्हाट इट्स अ कॉस्ट फॉर प्रिवेंटिंग योरसेल्फ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रेनिंग का भी कॉस्ट आपका इसी में आता है, ठीक है। क्वालिटी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग TRG लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये ट्रेनिंग है। तो ये आपकी लेबर्स की जो ट्रेनिंग होती है, ये भी आपके कॉस्ट इधर ही आते हैं 150,000। तो ये भी आपका प्रिवेंटिव कॉस्ट है। उसके बाद जो है, उसके बाद प्रोडक्ट की टेस्टिंग कॉस्ट नहीं होगी। उसके बाद बेंचमार्क मेंटेनेंस, ये भी आपकी कॉस्ट यहाँ पे नहीं आएंगी। उसके बाद ये 70,000 जो आपका ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है, ये भी नहीं आएगा। नॉर्मल मेंटेनेंस आएगा, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इसमें नहीं आएगा। उसके बाद बातें आएंगी, प्रोडक्ट को स्क्रैप कर गया तो इंटरनल फेलियर है, कॉस्ट ऑफ रिटर्न, एक्सटर्नल फेलियर है, कस्टमर सपोर्ट भी यहाँ पे नहीं आएगा, वो भी हमारा इंटरनल कस्टमर सपोर्ट है तो हमारा एक्सटर्नल फेलियर हो गया। प्रोडक्ट लायबिलिटी, ये भी हमारा एक्सटर्नल फेलियर हो गया। तो अब हमने यहाँ पर से इसको ऐड करना है, तो 2,40,000 और 1,50,000, ये तीन हम लाके ऐड करके चेक करते हैं। आजम भाई, आवाज जा रही है? यस मेराज भाई, आ रही है, आ रही है। स्क्रीन आ रही है ना? वो तीनों का एडिशन नहीं बताया कितना होता है, तीन का एडिशन कितना होता है, तीन का रिजल्ट क्या आता है? 3,00,000, 2,40,000 और 50, तीनों को ऐड करेंगे कितना आता है? 690। 690। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो अभी तक ऐसा कोई बात लगा जो आपको समझने में दिक्कत हुआ हो? रोशन भाई, आजम भाई, कोई भी आदमी बता दो मेरे को। It's like 90,000. थैंक यू मोहन। आजम, समझने में डिड यू गेट एनी इश्यूज इन अंडरस्टैंडिंग? नहीं मेराज भाई, क्लियर है ये। लेकिन मेराज भाई, मेरे को प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, वो असाइनमेंट इसलिए रुक गया मेरा। प्रोसेस कॉस्टिंग के थोड़े प्रॉब्लम्स बताए तो अब क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम तो मैंने किए हैं, अब आप जी उनको हाँ रखे जी। हेलो।
नाइन नंबर है ना, तो वी विल डिस्कस द सेम। जब जब अपने 9 पर असाइनमेंट करेंगे जी इसीलिए तो उतना ही टूटना बोलते ना, तो सब क्लियर हो जाएगा अपना। जब अपने 9 नंबर असाइनमेंट करेंगे ना, तो हमारा वो सब क्लियर हो जाएगा। जी जी ठीक है मेरा जी। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट हेलो हेलो जी भाई। यस हाँ सर, भाई। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये करण, आपको कोई दिक्कत हो रहा था? डू यू फेस नो एनी प्रॉब्लम? नो सर, नहीं हो रहा। नो सर। बट थोड़ा रीड करना पड़ेगा, बिकॉज आई बिलीव आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, थोड़ा सा भी रीड करना पड़ेगा आपको। ओके सर, ओके। Mohan, you have any issues until now when we discuss? Hello, sir. Hello. Hello. Yes, Mr. Mohan. Rajji, I'm not able to see your screen. I'm looking Roshan only like this on screen. I just wanted to ask, Mohan, you have any issues with that? Sir, I'm not able to see your screen, sir, right now. No. Just now I have closed that screen Okay. when I was doing the questions. Did you There is have no any? issue. No Okay. doubts. I have No, clear. because I did not. Why I was not asking to you, because I know these sections I have not discussed with you, Yes. but I believe this was quite easy and understandable. Yes, sir. So actually costing we have already finished, so we have now only 2 assignments left for the costing for them. So we will be finishing last 2 assignment now. So but next class we will be taking up the section C, that is very final. So Roshan bhai, Yes, sir. course assignment number 9. Yes, So you are submitting me today or tomorrow? When you are submitting? tomorrow. Tomorrow. Yeah. And Azam bhai, यस मेरा जी। tell me, आप कब कर रहे हो? When you are submitting में? मेरा में मैं किया आपको कल, मैं कल सबमिट कर दूंगा जितने भी बाकी है सब।
Okay, एक दो no. मैं किया था, बाकी के कुछ बाकी है, वो प्रोसेस कॉस्टिंग उसमें ही आके फंस गया, तो उसके बाद आगे करा ही नहीं फिर। तो मैं फिर वो हॉक सेज फिर प्रॉब्लम्स करा था बाकी के। अच्छा, तो हॉक जी में भी हाँ, कितने स्कोर्स आ रहे हैं? आ रहा है मेरा आज भाई, अच्छा ही आ रहा अभी, 75%, 80%। लेकिन तो एक बार आप प्रोसेस कॉस्टिंग बता दीजिए फिर से। अगर आप एक दो प्रॉब्लम भी बताए तो मैं फिर आगे कर ले सकता हूँ फिर। नहीं, वो तो मैं 8 9 पे जब कराऊंगा तो आई विल टीच, नो प्रॉब्लम। जी जी, ओके। तो तो कल यशवंत, कब का? एटलीस्ट ट्राई टू सबमिट असाइनमेंट नंबर 9, माय ब्रदर। ओके सर। करण, आप, करण लेफ्ट आई थिंक। तो मोहन, if you wanted to do by yourself assignment number 9, I would recommend you to do it because you have a very strong background of finance. Okay, sir. I'll do it. But Yeah, can you send yeah. me that copy, sir? Assignment No, copy. no. Yeah, sure. Now you are in group, so I'll share in the group now. Okay. 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 So at least try doing this. No problem. No harm of doing it. Okay, sir. At least I'll try it. you will be understanding where maybe you will do most of the things. Maybe you will have a just concept problem. There also I will able to analyze. And Okay. anyhow, we have to do all these things. So 9 number assignment I'm sending. So you have to Okay. do. Kamal bhai, I'm also expecting you to do, please, sir. Kamal bhai, your voice is gone, my brother. इंशाल्लाह बॉस, जी भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चले, अल्लाह इंशाल्लाह अब करके मेरे को भेज रहे हैं। Okay, so we are closing here now. So Roshan bhai, there's two recording most probably today. Yeah, So I'll try. sorry to bother you, and thank you for the support also. Okay. Please do assignment number 9 so that we'll do little fast. Yeah. Okay. Okay. Thank you. And you have to start doing from the previous assignment also. That is one of your weak areas. You have to do it, please. Okay. I think you have started doing it. Yeah, 1, 2, 3 I've done. That's great. Yeah. Do it wherever you are facing the problem. Maybe if still you are not able to understand, you can ask me, no problem.